Okay, welcome back to this electrophilic aromatic substitution reaction. Continuation to earlier discussion. We had seen bromination of aniline. If we carry out bromination, direct bromination, then we get 2,4,6 tribromoaniline. To avoid that and to get only para derivative, we have to take one more step. We have to block this amine group which is more reactive. That part we had seen. Now we will move to the second reaction, and that is nitration using concentrated nitric acid. So dear students, here we have taken aniline. It is nitrated by using concentrated nitric acid, using concentrated sulfuric acid, giving a stable para-nitroaniline and unstable product ortho-nitroaniline, and this is found to be just 2%, whereas this para-nitroaniline is found to be 51%. And more interestingly, what we get here, along with this ortho and para derivative, we get here मेटा डेरिवेटिव ऑल्सो, है ना. तो ये एक यूनिक फीचर हो गया ये रिएक्शन में. दिस इज NH2 group and here we get meta nitroaniline. So surprisingly we get this M nitroaniline as 47%, है ना. So it's a big percent as compared to ortho nitro. So along with ortho and para nitroaniline, we are getting meta nitroaniline, and this is something very high percent. Now the point comes, why this M nitroaniline is formed in nitration of aniline when we know this NH2 group is ortho para directing. So the reason behind it is in presence of concentrated sulfuric acid. In presence of concentrated sulfuric acid, this aniline get protonated, इसका protonation होगा, get protonated into anilinium ion, get protonated into anilinium ion. So here is anilinium ion, and this anilinium ion is more stable than aniline itself, है ना. तो ये aniline से ज़्यादा stable है anilinium ion, and this will be meta directing, and therefore we get M nitroaniline. यहाँ से क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा. क्वेश्चन क्या बनता है फिर कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, why M nitroaniline is formed along with ortho para derivative. तो उसका रीजन क्या रहेगा कि in presence of concentrated sulfuric acid, aniline get protonated into anilinium ion, and this is more stable than aniline itself, and that's why we get M nitroaniline due to the formation of anilinium ion. So this is the nitration reaction, but this is not a complete reaction. We are getting mixture of ortho, para and meta derivative. If we want to have what? Only mono, that is only para derivative. If we want to have only para derivative, तब क्या करना होगा? जो ब्रोमिनेशन में पढ़ा था वही लॉजिक लगाना है. If we want to have only para derivative, then what? Aniline का पहले एसिटिलेशन करो.
एसिटिलेशन हो गया, एसिटानिलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटानिलाइड का फिर नाइट्रेशन करना, तब जाके हमको ऑर्थो डेरिवेटिव ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. देन ओनली वी गेट ऑर्थो डेरिवेटिव एज द ओनली प्रोडक्ट हियर. सो लेट अस राइट दैट पार्ट. विल टेक वंस अगेन एनिलीन हियर. पहले एनिलीन को फिर से बोलेंगे आप लोग. अब क्या करना होगा, NH2 ग्रुप है उसका एसिटिलेशन कर लेंगे. एसिटिलेशन करने के लिए एसिटिक अनहाइड्राइड, और एसिटिक अनहाइड्राइड ये एनिलीन को काय में कन्वर्ट करता है. प्रोडक्ट का नाम बोलते जाना है, एसिटानिलाइड, है ना, एसिटानिलाइड. अब ये एसिटानिलाइड का फॉर्मूला लिखते हैं. तो बहुत इजी है. कैसे याद रखना है उसको, एक हाइड्रोजन के जगह पे, है ना, NH एंड COCH3, ये बन गया एसिटानिलाइड. H के जगह पे एसिटिल ग्रुप आ गया. एसिटिलेशन मीन्स व्हाट, एसिटिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन, एसिटानिलाइड. अब आप इसका नाइट्रेशन कर लीजिए यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, HONO2 लिखते हैं. अब नाइट्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमें पता है प्रोडक्ट पैरा डेरिवेटिव मिलेगा. What happens to the remaining group? That will remain as it is, NHCOCH3 एसिटानिलाइड, और ये पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया. But this is not the final product. What will be, what product we need to have? पैरा डेरिवेटिव, पैरा अमाइन चाहिए, पैरा नाइट्रो अमाइन चाहिए हमें. तो इसको अब क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस. So carry out acid hydrolysis. So when we carry out acid hydrolysis, what product we will get here? Yes, we get para-nitroaniline. देखो ये एसिटानिलाइड ग्रुप वापस एनिलीन में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोलिसिस से. पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर ये एसिटिक एसिड. सो दिस इज व्हाट para-nitro, this is what para-nitroaniline. Para-nitroaniline is the only product we get after carrying out acetylation. Acetylation किया आपने तो आपको para-nitroaniline मिला. So nitration है ना, continuation of electrophilic aromatic substitution reaction, नाइट्रेशन. डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो, पैरा और मेटा डेरिवेटिव भी मिलता है. मेटा क्यों मिलता है ये समझ लिए हमने. अब हमको अगर सिर्फ पैरा डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले एनिलीन का एसिटिलेशन करेंगे. एसिटिलेशन करके एसिटानिलाइड बनेगा. एसिटानिलाइड बन गया, अब नाइट्रेशन करेंगे, और नाइट्रेशन करने के बाद उसका फाइनल स्टेज में एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3. थर्ड स्टेप में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज सल्फोनेशन. Sulfonation by using concentrated H2SO4 sulfuric acid. Sulfonation. So in this reaction, what happens when aniline is allowed to react? Aniline is allowed to react with concentrated sulfuric acid. When it is allowed to react with concentrated sulfuric acid, H2SO4, what happens here? We get anilinium hydrogen sulfate. जैसा मैंने कहा था ना कि क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है. ये एनिलीन ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा. इसमें से एक प्रोटॉन आ जाएगा बाहर, HOSO3H. तो वन प्रोटॉन विल मेक दिस एनिलीनियम, correct, and
HSO4 will be the remaining portion to this. So we get here anilinium hydrogen sulfate, anilinium hydrogen sulfate. This product we get as a intermediate product, and this on heating at 453 to 473 Kelvin in presence of again sulfuric acid will provide पैरा डेरिवेटिव. तो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा. NH2 ग्रुप के पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप SO3H. बॉन्ड सल्फर से बनाना है, वैलेंसी सल्फर के पास फ्री है, तो ये क्या बना? पैरा नाइट्रो, आई एम सॉरी, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब इंटरेस्टिंगली नोमेनक्लेचर देखो बदल गया. क्या हो गया? दो ग्रुप थे, अभी तक हम एनिलीन बोल रहे थे, जैसे यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन, एंड NH2 ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप इज टॉप ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो दिस विल गेट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पोजीशन, एंड नाउ दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट. NH2 अपने घर में ही ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया. जो पहले आने वाले ग्रुप के लिए मेन था, जैसे पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलते थे, पैरा नाइट्रो एनिलीन, अब इसके सामने ये एनिलीन ग्रुप क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट. इसीलिए हमने क्या बोला उसे? पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ दिस पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. डन. एनिलीन का सल्फोनेशन हो गया. अब इसमें एक और एस्पेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम पढ़ लेते हैं कि ड्यू टू अ प्रोटॉन ट्रांसफर this molecule get converted to a dipolar ion. It get converted to dipolar ion. वो कैसे डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो रहा है? ड्यू टू अ प्रोटॉन ट्रांसफर. और वो प्रोटॉन ट्रांसफर NH3 प्लस यानी प्रोटॉन मिल गया इसको. अब गया भी यहाँ, इसको मिला है तो कहीं से निकला भी होगा, तो यहाँ से ये प्रोटॉन का लूज किया. SO3H ने प्रोटॉन लूज किया, माइनस साइन आ गया. NH2 ने प्रोटॉन गेन किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो एक ही मॉलिक्यूल पे हम क्या देखते हैं? There is one positive terminal, another is a negative terminal, and this is what we call as dipolar ion, and it is also called as Zwitter ion, which is highly reactive. क्योंकि इतना डायपोलर है, एसिड आएगा तो इधर अटैक करेगा, बेस आएगा तो इधर अटैक करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है तो एनायंस जितने रहेंगे वो सब इस पे अटैक करेंगे. ये नेगेटिव चार्ज है तो पूरे कैटायन अटैक करने के लिए तैयार. यानी ये हाईली रिएक्टिव. दैट्स व्हाई द टर्म गिवन डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन. ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका एसिडिक एंड हो गया, टर्मिनल हो गया, एसिडिक टर्मिनल, और ये इसका बेसिक टर्मिनल हो गया और एंड हो गया, है ना. तो दिस सच मॉलिक्यूल और सच structure will be called as dipolar ion and called as Zwitter ion. So my dear students, here finally we complete electrophilic aromatic substitution. This video is a very short because due to some technical reason I could not complete the previous one. So you better connect this information and be prepared for this topic, amines. So amines is
completed by all means here, है ना. और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.